ہے لاہور نیوز میں ہوئی ربناز سیٹس آپ جان چکے ہیں۔ تو آغاز میں خبر فضائی آلودگی کے حوالے سے یہ ہے کہ لاہور دنیا میں 5ویں نمبر پر براجمان ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 191 ریکارڈ کیا گیا ہے، تو وہیں لاہور کا کم سے کم ٹمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے زین علی۔ بتائیے زین۔ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور کی فضائی آلودگی میں آج بھی جو ہے وہ بہتری نہیں آ سکی۔ شہر لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی جو ہے وہ 5ویں نمبر پر موجود ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 191 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ شہر کے کس علاقے میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس، تو گلبرگ کے علاقے میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 256 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے جوہر ٹاؤن اور سے ملحقہ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 240 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے ڈی ایچ اے اور فیز 8 اور اسے ملحقہ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 198 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے مال روڈ اور اسے ملحقہ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 169 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے لاہور کینٹ کی، تو جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 138 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر کچھ شہر لاہور کے درجہ حرارت کی بات کر لی جائے، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 5 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 79% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں آئندہ ہفتے تک کوئی بارش کا امکان ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ زین اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا زین۔ تو آگے بڑھتے ہوئے بتائیں آپ کو کہ فضائی آلودگی اور خشک سردی سے شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی کی شکایات عام ہونے لگی ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ خشک سردی اور فضائی آلودگی سے شہری متاثر ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ بچے نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں مبتلا ہونے لگے۔ 7 روز میں شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں 12,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جناح ہسپتال میں 5600، میو ہسپتال میں 5200، جبکہ گنگا رام ہسپتال میں 4400 سے زائد مریض آئے ہیں۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کم قوت مدافعت والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں۔ سرد موسم میں انڈوں کا ریٹ بھی گرم ہو چکا ہے۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے اور فی درجن قیمت 376 روپے ہو گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 11,160 روپے میں فروخت اور برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکن 10 روپے سستا اور فی کلو قیمت 531 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 7 روپے فی کلو تک کمی ہوئی ہے، جبکہ زندہ برائلر ہول سیل 352 اور پرچون ریٹ 368 روپے کلو مقرر۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر، چکن کی قیمت میں کمی آنے لگی ہے، مزید کمی کا امکان ہے؟ جی بالکل، جو برائلر ہے اس کی کھپت جو ہے مارکیٹ میں غیر معمولی طور پر کم ہوئی ہے۔ شہریوں کی جانب سے پرچون مارکیٹ میں برائلر کی خریداری جو ہے وہ کم کی گئی ہے، جس کے باعث جو ہے قیمتوں میں اب جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج قیمت 10 روپے فی کلو تک کم کی گئی ہے۔ مرغی کا گوشت گزشتہ روز جو 541 روپے فی کلو تھا، 10 روپے کمی کے بعد 531 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 7 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 352، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 368 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انڈے 2 روپے فی درجن تک مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ آج مزید 2 روپے مہنگے کیے گئے ہیں۔ 374 روپے فی درجن سے قیمت بڑھا کر سرکاری ریلز میں 376 روپے فی درجن مقرر کی گئی اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11,160 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ تاہم شہر کے پرچون بازاروں میں انڈے جو ہیں وہ 480 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ 40 روپے تک فی انڈا جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ سرکاری نظرنامے جاری کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتی ہیں، لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے تاکہ انڈوں کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ نیا سال مہنگائی کی لہر بھی ساتھ لے آیا ہے۔ حکومت نے سال کے
पहले ही दिन आवाम को एलपीजी की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया है। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये 52 पैसे थी। कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे हो गई। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयला और लकड़ी भी महंगे हो गए हैं। लकड़ी की कीमत में 200 रुपये फी मन इजाफा, जबकि कोयले के दाम 20 रुपये फी किलो बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद जहां एक तरफ शहरियों को गैस की बंदिश का सामना है, तो दूसरी तरफ ईंधन के मुतबादल ज़राए भी पहुंच से बाहर हो गए। लकड़ी की कीमत 1600 रुपये फी मन तक जा पहुंची, जबकि कोयला भी 20 रुपये फी किलो महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल लकड़ी 1400 रुपये मन और कोयला 90 से 95 रुपये फी किलो था, मगर इस साल कीमत में इजाफा होने से लकड़ी और कोयला दोनों महंगे हो गए हैं। लकड़ी का जो रेट है ना, कम से कम 200 रुपये जो है ना इजाफा हुआ है। कोयले में जो है ना कम से कम 20 रुपये इजाफा हुआ है। लोग भी परेशान हैं। ईंधन के मुतबादल ज़राए महंगे होने से शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। कैमरामैन अयूब के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। गैस के अदम दस्तयाबी शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। शहरियों का साल का पहला दिन ही अजियत और एहतजाज में गुजरा। ख़वातीन ने एहतजाजन सड़क पर लकड़ियां जलाकर नाश्ता तैयार किया। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान ने भी एहतजाज में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। गैस की अदम दस्तयाबी शहरी खाना पकाने से लाचार। क्लिफ्टन कॉलोनी वादत रोड के मकीनों का साल का पहला दिन ही एहतजाज में गुजरा। सख्त सर्दी में बच्चे, खवातीन, बूढ़े अफराद सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच भी एहतजाज में शरीक हुए। खवातीन का कहना था कि गैस ना होने से सुबह नाश्ता बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सिलेंडर खरीदने की सकत नहीं। गैस बिल्कुल भी नहीं है। चूल्हे हमारे सुबह भी बंद है, दोपहर भी बंद है, शाम भी बंद है, रात भी बंद है। बच्चे हमारे भूखे होते हैं। इतनी महंगी गैस है कि गरीब लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी ऐसे परेशान होकर रह गई। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना था कि 75 सालों से इस मुल्क के अवाम को उनके हकूक नहीं मिले। जमात इस्लामी ही मसाइल के हल की वाहिद उम्मीद है। मैं यही अपील करूंगा, साल 2024 के इलेक्शन के अंदर तराजू पर मोहर लगाएं, क्योंकि मैं समझता हूं तराजू हक का, सच का निशान है, खुशहाली का निशान है, तराजू अमन का निशान है। आइए आप हमारा साथ दें कि जैसे पहले भी इस शहर की आवाम की हमने खिदमत की है, अगर आप हम पर एतमाद करेंगे इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। शहरियों ने आला हुकाम से गैस लोड शेडिंग खत्म करने की अपील की। कैमरामैन फैसल के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। 2023 में सरकारी गंदम की कीमतों में 113% होशरबा इजाफा किया गया। आटे की कीमत 65 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, जबकि आटा और मैदा महंगा होने से नान भाइयों ने भी रेट बढ़ा दिए थे और गरीब शहरियों पर जिंदा रहना मज़ीद दुश्वार हो गया था। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। साल 2023 में गंदम और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके शहरियों पर महंगाई का भारी बम गिराया गया। महकमा खुराक की जानिब से गंदम और आटे की कीमतों में साल में दोबारा इजाफा किया गया। फी किलो आटे की कीमत 75 रुपए बढ़ा दी गई और 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए से बढ़कर 1399 रुपए का हो गया। आटे की कीमतों में तूफान आते ही रोटी और नान भी महंगा कर दिया गया। साल भर में रोटी की कीमत 4 रुपए बढ़ाई गई। सादा रोटी 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। नान की कीमत भी 5 रुपए इजाफे के बाद 25 रुपए मुकर्रर हो गई। मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि लिबरल पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। गंदम की कीमतों में इजाफे से रोटी नान महंगे हुए। इसके असरात गंदम से बनने वाली तमाम आइटम्स पर भी आए। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई माफिया बेलगाम है और इंतजामिया नाकाम है। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम का सिलसिला जारी है। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 240, टमाटर 140 रुपये किलो बिकने लगे हैं। मटर 220, मेथी 160, फूल गोभी 130 और आलू 90 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे हैं। जबकि फलों में अंगूर 680, खजूर ईरानी 600, सेब 400 और अमरूद 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, इसमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज की कीमत में 10 रुपए का इजाफा करके 190 रुपए सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी प्याज जो है 240 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया और 110 रुपए सरकारी रेट इसमें कीमत है। ताहम मार्केट में
जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो 140 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 120 से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 5 रुपए महंगा करके 545 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड 10 रुपए महंगा करके 415 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर की गई है, फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मौसमी सब्जियों में खीरा 2 रुपए महंगा करके 35 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 1 रुपए बढ़ाकर 83 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 130 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरबी 5 रुपए महंगी करके 140 रुपए मुकर्रर की गई है, फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक की जा रही है। जबकि फलों में जो रेड लिस्ट है उसमें एक फल महंगा किया गया, जबकि दीगर फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब 280 के बरक्स 400 रुपए, केला दर्जा अव्वल 155 के बरक्स 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अमरूद 140 के बरक्स 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपए महंगा करके 385 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 680 रुपए फी किलो तक अंगूर की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नफनामों के बरक्स महंगे दामों मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कोई शक नहीं दहशतगर्दी का चैलेंज मौजूद है, इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे, कर्ज लेना मनफी अमल नहीं है, IMF से किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। और उनका मज़ीद कहना है कि हम रोज़ मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सबका हक है, जबकि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर पहुंचते ही निगरान वज़ीर आज़म बिजनेस फैसिलिटेशन के दफ्तर पहुंचे, कारोबार सहूलत मरकज का दौरा किया। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी के काम की तारीफ की, कहा पंजाब को ग्रांट की कोई जरूरत नहीं, पंजाब कमाओ पुत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों का हर किस्म का बयानिया होता है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए, अगर किसी को 2 डंडे पड़ते हैं तो सारे लब कुशाई करते हैं। कुछ लोग इस्लामाबाद के एहतजाज को गजा सूरत हाल से तशबीह देते हैं, मुझे ताने ना दें कि आपको बलोच याद रखेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में, लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। वाटर कैनन जिस तरीके से उसको बदकिस्मती है कि कुछ लोग गज़ा और फ़लस्तीन की सिचुएशन से भी जोड़े जा रहे थे, मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे, मैं और बलोचों के 3 नस्लों से हमारा ताल्लुक है। निगरान वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि IMF से जान तब छूटेगी जब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। FBI ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया है। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें, आरोज के फैसलों के खिलाफ एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर होने लगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ शहरी इश्तियाक चौधरी ने अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर रखा है। RO ने कानून के मुनाफी फैसला दिया, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ दायर अपील में मुसद्दक़ा कापियां न होने का एतराज़ आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा पेपर्स केस में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करार दिया था। वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो इन फील्ड है, वो रिकॉल नहीं हुई, वो सेट असाइड नहीं हुई, और जब तक वो जजमेंट सेट असाइड नहीं हो जाती तब तक मेरे नज़दीक जो है वो अहल नहीं है वो इलेक्शन लड़ने के, और चूंकि लाइफ टाइम बैन एग्जिस्ट करता है। PP 51 डस्का से नून लीग के उम्मीदवार अफसर मंशा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। इसी तरह कसूर से PP 176 की उम्मीदवार मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कहना है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शेर दहाड़ेगा। इक़्तिदार में आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, सब जमातों से मिलकर माशी तरक्की का 10 साला प्लान लाएंगे। हमने अपने मामलात अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्का NA 118 में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। आज मुल्क को सिर्फ $1 अरब के लिए दुनिया के सामने झुकना पड़ रहा है, जो इज्जत वाला काम नहीं है। 2013 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह के बाद आप लोगों ने अपने वोटों से वज़ीर आज़म बनाया तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी इस मुल्क में। बताओ होती थी कि नहीं होती थी? 2013 से 2018 का वक्त, जब ये डॉलर जिसने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं, अगर इसको ना निकाला जाता तो शायद आज ये मुल्क दिवालिया हो गया होता। बानी चेयरमैन PTI को इक़्तिदार से ना निकालते तो मुल्क दिवालिया हो गया होता। आज महंगाई ने अवाम की नींदें हराम कर दी हैं। 16 माह में इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को कामयाब करना मुल्क की खुशहाली को खुशामदीद कहना है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। इंतखाबी सरगर्मियों में जमात इस्लामी भी पेश है। लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इंतखाबात बर वक्त और शफाफ होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक का हक है। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। इंतखाबात का साल, सियासी सरगर्मियों में तेजी, जमात इस्लामी भी मुतहरिक। मंसूरा में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान के इंटरव्यू के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि अवाम अब आजमाए हुए लोगों को वोट नहीं देंगे। सियासी जमातों के पास कोई मंशूर नहीं है। शफाफ इलेक्शन ही मुल्की वकार और तरक्की का जामिन है। गैर जानिबदाराना इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सब का हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी है कि किसी को ना लाडला बनाया जाए और न किसी साबका लाडला को रियासत की ताकत के साथ दीवार से लगाया जाए। हर एक के सियासी जमहूरी हक को तस्लीम किया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि तराजू हमारा निशान है, तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी ही है। कैमरामैन मुबीन के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। चौथी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला मुसद्दिका कॉपी फराहम न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को परवेज़ इलाही समेत दीगर को मुसद्दिका कॉपी देने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी ने केस की समाअत की, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 64 गुजरात और NA 69 मंडी बहाउद्दीन समेत सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान फैसलों की मुसद्दिका नक़ल फ्राहम नहीं कर रहे हैं। अदालत रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका नक़ल फ्राहम करने का हुक्म दे। परवेज़ इलाही के वकील ने यह नुक्ता भी उठाया कि जो नुमाइंदा परवेज़ इलाही की जानिब से मुसद्दिका कॉपी लेने जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि तमाशा लगा हुआ है, इससे गुजरना तो पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को परवेज़ इलाही समेत दीगर को मुसद्दिका कॉपी देने का हुक्म दे दिया।